Good morning, everybody. Welcome to this morning session, dear students. Today we are going to learn one important endocrine gland, that is the pancreas, in the chapter chemical coordination and integration. So let us start this important gland which is present in our body, that is a pancreas. First we will see the position of pancreas in our body, where it is present, where it located. See this one, stomach. This one, duodenum, leads into the structure we call it as a small intestine. Then this one we call it as a large intestine. So these are pancreas, it is present here in between these stomach and these large intestine. It attached to these C shape, these small part of small intestine, we call it as a duodenum. Pancreatic, these duct open here into these duodenum. Pancreas help in the process of digestion of food material in our body. Complete digestion takes place here in small intestine, and when the material passes, food material passes through these C shape, like these small duodenum, which is a part of small intestine. Duct of these pancreas open here, and pancreas secrete pancreatic juice, and these pancreatic juice digest food material here. So many digestive enzymes secreted by these gland, that is a pancreas. That is a exocrine function of this gland. Exocrine gland means such a gland which secretes their secretion outside the blood. Then that secretion enter in the blood, but these glands are duct gland and they secrete their secretion. Pancreas secrete their secretion here. That is the function of pancreas, exocrine function. But pancreas also perform the function, we call it as a endocrine. Pancreas also act as a endocrine gland also. Means the pancreas is the gland which perform two function, exocrine as well as endocrine. Exocrine function of pancreas is the pancreas secrete pancreatic juice here for the process of digestion of food material. That is the exocrine function of pancreas. And endocrine function of pancreas is this pancreas. If we take a section of this pancreas, अगर हमने pancreas का section अगर लिया तो in the pancreas many follicles are present. Follicles उसमें होते हैं, like these follicles are present. TS of pancreas, transverse section of pancreas. Pancreas को स्वादुपिंड कहा जाता है. And if you take the section of pancreas, in the section, in the transverse section, it shows like these structures, we call it as the follicles. ये follicles है. And the lining of these follicles, the lining of these follicles made up of triangular cells, pillar like cells. This one, 1 2 3 4 5 6 7, this is the lining of the follicle, and these pillar like triangular cell secrete pancreatic juice, help in the process of digestion of our food material. So these are pancreas, these are follicles. They release their pancreatic juice in these like these small tube-like structures, and these tube-like structures, they
join to form one common, we call it as a duct, and is a duct, we call it as a pancreatic duct. And that pancreatic duct here open here in the duodenum. तो ऐसे pancreas के अंदर many like these rounded like these structures which are present, these all structures collectively we call it as like these follicles. ऐसे इसके अंदर follicles होते हैं, and the lining of follicles made up of triangular like these cells or pillar like cells, which are totally they are functional cells, active cells, and due to protein synthesis they release here like these enzymes. So many enzymes they release. We call it collectively, we call it as a pancreatic juice. Help in the process of digestion of food material. But in between these 1, 2, 3, or in between these many like these rounded follicles, all these follicles they are present in the tissue. We call it as a connective tissue. ये सब फॉलिकल्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. ये कनेक्टिव टिश्यू है. दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव tissue like this, and in between these follicle in the connective tissue here, in between these follicle in the connective tissue here, group of cells are present. Millions of like this group of cells are present. इतना बड़ा पैंक्रियाज है, यहाँ 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 many ये follicles के बीच में in the connective tissue in many sites like this group of cells are present. We call it as a interstitial cell. Inter यानी ये follicles के बीच में, interstitial छोटे छोटे microscopic cells are there, also known as islets of Langerhans. It is also known as islets of Langerhans. ये इंटर बीच में स्टिशियल छोटे छोटे सेल्स, also known as islets of Langerhans. यानी islets of Langerhans उसको कहा जाता है because Langerhans, that is the name of scientist, describe the total function of these cells which is present in between these follicle. We call it as islets of Langerhans, differentiated into three type of cells. Out of these group of interstitial cell or islets of Langerhans, some cells we call it as alpha cell. Alpha cell. Some cells out of these we call it as a beta, like this a beta cell, and some cells we call it as delta, like this alpha beta delta, like these cells. So out of these three cells, two cells are very important. One that is the alpha cells, and second one is the beta cells. Now in between these, out of these islets of Langerhans, some are alpha cells and some are beta cell. सेल माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग है करके एक को हमने नाम दिया है एज अल्फा, और दूसरे अलग एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, इसलिए हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसलिए उसको हमने दूसरा नाम दिया है, वी कॉल इट एज बीटा. These alpha and beta, these cells release peptide हार्मोन्स. बाकी जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज नहीं करते, बट पैंक्रियाज जो है उसमें अल्फा और जो बीटा सेल्स है दे रिलीज पेप्टाइड हार्मोन्स. अल्फा सेल विच इज देयर आउट ऑफ दीज islets of Langerhans, those cells are alpha cell. इनमें से जो सेल अल्फा सेल जो हमने डिटेक्ट किए हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट अल्फा सेल तो सेम ही होते हैं, दिखने के लिए सेम ही रहते हैं सब, लेकिन जो फंक्शंस अलग अलग करते हैं, उनको एक को नाम दिया है अल्फा, दूसरे को नाम दिया हमने बीटा. अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागॉन. अल्फा सेल जो है दे रिलीज ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन. यानी पैंक्रियाज एक ग्लैंड ऐसी है जो दोनों फंक्शन करती है. वन फंक्शन रिलीज द पैंक्रियाटिक जूस, that is the exocrine function.
exocrine function. And these same pancreas, इसमें के ये जो सेल है, दे रिलीज हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं. Means these glands perform both function, exocrine as well as endocrine. So these gland, pancreas, we call it as a heterocrine gland. Hetero, different, means which perform different functions. Pancreas perform both functions, exocrine function as well as endocrine function. Exocrine function जो है pancreas के help in the process of digestion of food material. Endocrine जो function है pancreas के which release the hormones, हमारे बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें 5 लीटर जो ब्लड है और हमारे बॉडी के ये जो टिश्यू है सब, इनमें ग्लूकोज और ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करते हैं. ओके, लाइक दिस. सो एक का काम है उसको बढ़ाना, एक का काम है उसको कम करना. तो देखेंगे आप कैसे ग्लूकोज को वो कौन ज्यादा बढ़ाता है और कौन कम करता है, हम देखेंगे. अल्फा सेल्स, इट रिलीज ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन्स. ये पेप्टाइड हार्मोन्स है, पॉलीपेप्टाइड जिसको बोलते हैं हम, चेन, अमाइनो एसिड से बनने वाला ये हार्मोन्स. We call it as a peptide hormones. It act as a endocrine. Means these hormones directly secrete in the blood, due to which we call it as a endocrine function. Ductless gland, ये ductless है, इसे डक्ट नहीं होती, छोटी छोटी ट्यूब इसमें नहीं होती, उसका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में जाता है. लेकिन यहाँ तो डक्ट बनी है, ये छोटी छोटी ट्यूब बने हैं, ये डक्ट ग्लैंड है. तो पैंक्रियास दोनों फंक्शंस करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज व्हाट, एंडोक्राइन. अल्फा सेल्स which is present here in the islets of Langerhans release the glucagon. Glucagon is a peptide hormone. ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम रिलीज करते लेकिन ये हार्मोन रिलीज करते. Do you got it? So this glucagon is a peptide hormone. What is the function of this glucagon? Maintain normal blood glucose level. It maintain normal blood glucose level body में, not in the blood stream. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें नहीं है, बॉडी में. इट मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. दैट इज अ फंक्शन ऑफ दिस ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन द लीवर सेल. जो हमारे लीवर सेल है, कलीजा, लीवर, उनके सेल के ऊपर जो हेक्सागोनल सेल है उसके ऊपर ये एक्ट करते. ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन द लीवर सेल, दैट इज अ हिपैटोसाइट. हिपैटो, दैट इज अ मेडिकल टर्म ऑफ व्हाट, लीवर. And stimulate glycogenolysis. Lysis means breakdown. Glycogen का breakdown. Glycogen get breakdown in the liver cell. Liver cell में glycogen breakdown होता है, like this. In the liver cell. हमारे इस सेल के अंदर, ये जो सेल है हमारे बॉडी के बाकी के सेल, इसमें in the cell ब्लड, जो भी हम खाना खाते हैं, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, रोटी है, व्हाट इट मे बी, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में आने के बाद, यहां आने के बाद, बाय द एक्शन ऑफ पैंक्रियास एंड बाय वेरियस दैट डाइजेस्टिव जूस, स्टार्च, आलू, बैंगन, टमाटर कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, एब्सॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज. यहां ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम. पैंक्रियास का भी उसमें रोल है. और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है कहां, ब्लड में. और अब 5 लीटर ब्लड है, अब इट सर्कुलेट दैट ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी. अब आपके ब्लड में ग्लूकोज आ गया है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जो आया है वो आपके ये जो टिश्यू है सब बॉडी के, ये जो है, ये सब स्किन के सेल से और अलग अलग जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है उसमें जाता है. ये है ना, हमारे पूरे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, हर सेल को ग्लूकोज मिलता है. एंड व्हेन द ग्लूकोज कम्स इन द सेल एट द सेलुलर लेवल, दैट ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है. अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं, अभी भी आपके बॉडी के हर सेल में
ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज ग्लाइकोलिसिस। वो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोजेनोलिसिस। यू गॉट इट? तो ग्लाइकोजेनोलिसिस ये लीवर में होती है, और हमारे ये पूरे सेल में ग्लाइकोजेनोलिसिस नहीं होती, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है हमारे यहाँ पे, और वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर छोटा 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। एंड व्हेन इट गेट कन्वर्ट, ये सेल है, ये सेल के अंदर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज आया है, जो आपने खाना खाया है उसका ग्लूकोज बन के यहाँ आया है। दैट ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता है। एंड देन दिस ग्लूकोज एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया आप नाक में से जो ऑक्सीजन लेते, ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है लंग्स से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। फिर आपके हर यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ क्रेब्स साइकिल होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, एंड एनर्जी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज एटीपी। और ये एटीपी मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, जो खाना खाता हूँ उसको ऐसे यूटिलाइज करता हूँ इन द अनदर फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। अभी आवाज आपको आ रहा है, वो भी मैं एनर्जी से, वन एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये प्रोसेस यहाँ पे होती है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद। नेक्स्ट साइकिल, दैट साइकिल वी कॉल इट एज अ क्रेब साइकिल, और एनर्जी बनती है जो हम खाना खाते, जो चावल रोटी वगैरह खाते उससे, ये सब प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती है। नाउ सी हियर, लीवर में यानी हमारे सेल में तो ग्लाइकोलिसिस होती है, लेकिन लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनोलिसिस ये प्रोसेस होती है। देन दिस ग्लाइकोजन reduces the cellular glucose uptake and utilization। जो ग्लाइकोजन है, दिस वन अल्फा सेल विच secrete ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन reduces the cellular glucose uptake and utilization। ग्लाइकोजन ये रिड्यूस करता है द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको लेने के लिए वो रोकता है, उसको रिड्यूस करता है, कम लेता है। ग्लाइकोजन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो हमारे बॉडी के जो सेल है उसमें ग्लाइकोजन ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको वहां आने के लिए रोकता है, लाइक दिस। यानी वहां नहीं आता है, वो कम आता है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, क्रेब साइकिल उतनी फास्ट नहीं होती, एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती, उतना ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता। वी कॉल इट एज अ हाइपरग्लाइसेमिया, रिजल्टेड इनटू हाइपरग्लाइसेमिया, जिसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। दीज अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन वी कॉल इट एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। नाउ सेकंड, out of these some cells we call it as alpha cell, and out of these islets of Langerhans some cells we call it as B cells, beta cells। it release insulin, ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स डायरेक्टली secrete in the blood, peptide hormones, insulin, very important। insulin act mainly on these insulin acts mainly on hepatocytes and adipocytes and enhance cellular glucose uptake and utilization। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट, लीवर के जो सेल है उसके ऊपर ये काम करता है, जैसे ये करता है। एंड एडिपोसाइट, एडिपोसाइट मींस एडिपोज टिश्यू, जो आपके बॉडी के अंदर चर्बी है उसके ऊपर ये काम करता है। जहां तेल तेल चर्बी जो है आपके बॉडी के अंदर जहां प्रेजेंट है, वहां किडनी के ऊपर, यहाँ वहां हार्ट, लाइक दिस। adipocytes, sites means cell, adipose tissue, adipocyte, and enhance cellular glucose uptake। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यानी ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको अंदर लेता है, सेल में यहां लेता है, ये सब टिश्यू में, सेल्स में लिया जाता है। जो ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो हमने खाना खाया, जो आलू वगैरह जो है, विच गेट कन्वर्ट इनटू दैट स्टार्च गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जो ब्लड में आया है, जो ब्लड में प्रेजेंट है, उसको लेगा कहाँ? हमारे ये बॉडी के सेल्स में। तो ब्लड स्ट्रीम में का ग्लूकोज हमारे सेल में आता है।
जैसे ही सेल में आता है ये रोकने का काम करता है, लेकिन ये उसको लाने का काम करता है इंसुलिन। और जैसे हमारे सेल में आएगा ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट at the cellular level. Glycolysis, after completion of glycolysis, two molecules of pyruvic acid formation takes place. वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल कंप्लीट होगी, क्रेब साइकिल कंप्लीट होने के बाद में एटीपी बनेंगे, एंड दैट एटीपी हम ऐसे यूज करेंगे अलग अलग एनर्जी फॉर्म में, यहाँ दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए, लाइक दिस। दैट एनर्जी वी आर यूजिंग एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम यूज करते, वो एनर्जी है, यूजेबल एनर्जी। तो इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें से, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें से जो ग्लूकोज उसमें है ब्लड में, वहां का ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स तक लेके आने का काम, उसको वहां लाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ये सेल के अंदर लेने का, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल में लाने का काम करता है। Glucose uptake and utilization, and glucose get breakdown, Krebs cycle formation takes place, energy formation takes place। तो वो ग्लूकोज जितना ब्रेकडाउन होगा, जितना एनर्जी बनेगी, जितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे, उतनी हमको भूख लगेगी, उतना हम खाना फिर और खाएंगे, हमारे ब्लड में का ग्लूकोज जो है मेंटेन होता रहेगा। ओके, ये पूरे बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन करता है, ये ग्लाइकोजन, ये ग्लूकागॉन जो है ये मेंटेन करता है। तो ब्लड में का जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने का काम ये करता है इंसुलिन। सो इंसुलिन एक्ट एज ए मीन्स these B cells, beta cells out of these islets of Langerhans release the insulin, due to which insulin acts mainly on hypocytes, that hepatocytes and adipocytes, and enhances cellular glucose uptake and utilization, resulted into hypo यानी कम करना, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ब्लड में का कम करने का काम करता है इंसुलिन। ये बढ़ाने का काम करता है, ये कम करने का काम करता है, लाइक दिस। इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस। Glucose homeostasis in blood thus maintained by jointly insulin and glycogen. Hyperglycemia leads into diabetes mellitus। तो इससे क्या होता कि इंसुलिन मेंटेन करता है ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में का, सर्कुलेटरी सिस्टम में का, क्योंकि इंसुलिन जैसे ही सिक्रेट होगा, ब्लड में जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है वो हमारे टिश्यू में लेके आता है, हमारे ये सब सेल्स में लेके आता है, और वहां ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज एनर्जी बन जाती है, फिर हमको भूख लगती है, फिर और हम खाना खाते हैं, फिर और ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी ब्लड में का बढ़ जाता है, फिर और उसको हम क्या करते हैं, हमारे सेल में लेके आते हैं और उसको ब्रेकडाउन करके एनर्जी बनाते हैं। इंसुलिन मेंटेन लाइक दिस शुगर लेवल, बट इफ द बीटा सेल, ये जो बीटा सेल है, इनमें से जो बीटा सेल है, इफ दैट बीटा सेल्स आर डिफेक्टिव, उनमें के जीन्स जो है वो अगर डिफेक्ट हो गए, अल्टर्स हो गए बाय एनी मींस, या जेनेटिक, जिसको बोलते पिताजी को अगर डायबिटीज है तो फिर जो बेटे हैं उनमें भी वो जीन्स जो है आते हैं, हेरिडिटी है, ऐसा अगर होता है, या बाय एनी मींस बाय म्यूटेशन, इफ दैट जीन्स गेट म्यूटेड, देन ऑल्सो इफ द जीन्स गेट म्यूटेड, इंसुलिन जीन अगर म्यूटेड हो गया तो बॉडी में इंसुलिन जो प्रॉपरली बनता है वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। And when the production of insulin get affected in your body by these beta cell, तो इंसुलिन आपके बॉडी में जितना चाहिए डेली उतना नहीं निकलेगा यहां से, तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो आपके सेल में वो आना चाहिए ग्लूकोज, वो सेल में आके ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो ब्लड में ही रहेगा, एंड ब्लड शुगर लेवल गेट इंक्रीज, and it leads into one disease. That disease we call it as hyperglycemia, leads into that disease we call it as a diabetes mellitus। उसको डायबिटीज मेलिटस हम लोग कहते हैं। आपके घर में, आपके आजू बाजू में आप लोग देखते हैं ऐसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। ये बहुत ही, जिसको हम कहते हैं स्वीट, जिसको स्लो किलर जो है इसको माना जाता है, बिकॉज ये हमारे बॉडी के काफी ऑर्गन्स को जो है अफेक्ट करता है धीरे 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 धीरे। ओके, सो इट लीड्स इनटू दिस डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज अगर हो गया तो उसमें आपके शुगर जो है, शुगर का
लेवल जो है आपके ब्लड में वो इंक्रीज होता है, और जब हम यूरिन करते एट दैट टाइम थ्रू द यूरिन दिस शुगर गेट पास आउट, बार बार शुगर जो है पास आउट होता है। यूरिन करने के बाद चीटियां अगर लगती है यूरिन को तो हम समझ जाते हैं कि नहीं उसमें शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, वी कॉल इट एज अ पैंक्रियास। अब ये डायबिटीज जो बीमारी है इसके बारे में जो है एक सेशन हम डिटेल्स में लेंगे, और उसमें जो है डिटेल्स डायबिटीज के बारे में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस मॉर्निंग सेशन। हम कल मिलेंगे और एक दूसरे ग्लैंड के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू। हो 25 मिनिटं घेतला.